मेरा नाम उमर है। आपको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और उसका रीसेंट अमेंडमेंट, साथ साथ में करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज, बिकॉज आई विल बी विथ यू फ्रॉम टुडे 14th to inshallah 19th. What 19th. So what I've decided is that I'll be dedicating 2 classes, आज का और कल का, to Jammu and Kashmir State Reorganization Act 2019, and then subsequently we'll be moving on towards current affairs. तो हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे बात करना उस बारे में जिस बारे में बात करने पे महबूबा मुफ्ती और उमर उद्ला को जेल हो जाती है, मगर हम कर सकते हैं। ठीक। सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट विथ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इट इज एवरीबडी कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, नो? सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट विथ इट, उर्दू पे मगर क्या वर्ड ती यथ उर्दू शी, सो प्रॉब्लम, सो बड़ प्रॉब्लम। चलो इस करो रल मिल। In order to understand the State Reorganization Act, it is important that you understand what we already had. That is why I'll be going through Article 370, and then through Article 370 we'll be discussing the State Reorganization Act. ठीक है? वहां पहुंचते पहुंचते हम स्टेट से यूटी पे आ जाएंगे। ठीक है? But that is the case. ये समझने के लिए, so we'll be talking about 370, 370 के बारे में बात करें। 370 talks about buying and selling of a slave. वही है? ये कोइंसिडेंस है। आईपीसी का 370 talks about buying and selling of a slave. Not that it is important, just for your knowledge. हमें मगर पढ़ना है आर्टिकल 370. To understand Article 370, we need to go back to the Constitution. For that, you need to understand what is a Constitution. Constitution is this basically कुछ अफलातून चीज है नहीं, हमारे पास codified norms which we all agreed upon. All of us agreed upon it as a country. Because India, as of today, which we see today, it attained its independence in 1947. In 1947, up until 1947, we were ruled by an imperialistic power. In 1947, a law was passed by that imperialistic parliament. We call it the Indian Independence Act of 1947. That act, which was passed by a parliament thousands of kilometers away from the homeland, it divided India. It divided India into the Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan. और एक unfinished business रह गया. Some call it the unfinished business. कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये फंडामेंटल नॉर्म्स है जो हमने कहा जिस बेसिस पे हम अपने आप को गवर्न करेंगे। गवर्न करना क्यों जरूरत था? क्यों फंडामेंटल लॉज चाहिए थे? क्यों एक कोडिफाइड नॉर्म जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहा वो क्यों चाहिए था? एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड क्यों चाहिए था?
Because when India attained its independence, the most of the learned scholars, both from the East and the West, all these biggies, the big brains, they said that India cannot survive as a nation. India will disintegrate as a nation. उनको पूछा क्यों? का रीजंस ऑब्वियस है. वो रीजंस क्या है कि आपका डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है कि सर्वाइव नहीं कर पाओगे एक साथ. आप हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, Jews, Parsis, Zoroastrians, you have all these mixes. You have capitalists, then you have socialists. किसी को गाय खानी है तो किसी को गाय नहीं खानी है, किसी को स्वर खाना है तो किसी को नहीं खाना है. एक मयान में एक ही तलवार रहेगी, तो कहा नहीं सर्वाइव करेगा. All these biggies, they said that India will not survive the test of time, it will disintegrate. But then you fast forward it to 2021. India has passed the test of time and we are still integrated, in fact more integrated than we were at that point of time. But that is the irony. So now we have survived the test of time. How did we do it? How did India survive the test of time? फ्लड्स बहुत आए. जब इंडिया ने अटेन किया इंडिपेंडेंस तो फ्लड्स बहुत सारे आए. वो फ्लड्स क्या है? वो फ्लड स्टार्टिंग में ही आया इन द फॉर्म ऑफ partition, in the form of student unrest, in the form of ethnic violence. But ये सारे floods in the form of poverty which the colonial masters had left. But we survived the test of time. We survived the test of time, and what made us survive that test of time? It was the beautiful vision of these constitutional makers who gave us this fundamental law of the land. We said, let's agree on some basic points, and once we agree on it, then we'll live peacefully. आज इंडिया में हम उसको कहते हैं, हमारे पास यहां ड्यूअल पॉलिटी है. ड्यूअल पॉलिटी, उसका मतलब यह है कि हमारे पास दो गवर्नमेंट्स हैं. एक जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा जिसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स. तो वी हैव अ ड्यूअल पॉलिटी इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ स्टेट गवर्नमेंट. और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे हम डिवाइडेड नहीं है, हम कल्चर के बेसिस पे डिवाइडेड नहीं है सिर्फ, हम बहुत चीजों पे डिवाइडेड है. हम डिवाइडेड है लिंग्विस्टिकली. कोई कश्मीरी है तो कोई बिहारी है तो कोई मल्लू है तो कोई तमिल है, कोई कन्नड़ है. तो ये सारों को क्योंकि एक मेन एक होना चाहिए, मीटिंग ग्राउंड होना चाहिए था, वो कुछ होना चाहिए था जिसके बेसिस पे हम साथ में रहें, और वो रहा ये कॉन्स्टिट्यूशन. इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया आर्टिकल 370. ये कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है आर्टिकल 370 की, जिसको हटाया गया, जिसके बेसिस, जिसको हटने से लाया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. बट वहां पहुंचे कैसे, उसके लिए ये थोड़ा देख लेते हैं. नाउ in context of this world, humans have been thriving right from the start of civilizations. आप theistic point of view लो या आप atheistic point of view लो. theistic point of view कहता है जो बिलीव करते हैं एडम और ईव जन्नत से निकाले गए. एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि चिंपैंजी से बना, एवोल्यूशन से बना. चाहे आप थीस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में बिलीव करो या एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में बिलीव करो. लेट्स टेक दिस वॉल टू बी द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशंस एंड दैट वॉल टू बी 2021 फेब. वहां से यहां तक हमने जो ये टाइम ट्रेवल किया, इसमें हमने बहुत चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था. यहां लोग कम थे, यहां आपके पास एडम और ईव थे, फिर उनके बच्चे हुए, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर 20 लाख, फिर 25 लाख. फास्ट फॉरवर्डिंग इट टू 2021 वेयर इंडिया अलोन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 बिलियन. ठीक, उनको इजी करना मैंने इजी था कंपैरेटिवली, मुश्किल होता गया क्योंकि लोग डिफरेंट है, लोगों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, उनकी एस्पिरेशंस डिफरेंट है.
तो हमने कहा विल ब्रिंग ऑर्डर टू द सोसाइटी एंड वी हैव ट्राइड डूइंग दैट. कभी हमने कहा माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने मोनार्की लाई. कभी हमने कहा नहीं वाइस रीजेंसी, हमने खिलाफत लाई. कभी हमने कहा नहीं डिक्टेटरशिप, तो हिटलर आया. सो इस टाइम में बहुत कुछ आया. इसी टाइम में फाइनली वी अराइव्ड एट व्हाट वी कॉल एज डेमोक्रेसी. अरुंधति रॉय सेज डेमोक्रेसी इज डीमन क्रेजी, शैतान जो पागल हो गया है. बट डेमोक्रेसी सेज, टेक्स्ट बुक्स टेल अस, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. इंजीनियर रशीद गया था वहां JNU. That one open democracy is government of the people, OFF, by the people, for the people. ठीक. अब डेमोक्रेसी में अपने फ्लॉज हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड. वंस यू अंडरस्टैंड इट इन टोटलिटी, कृष्णा थोड़ा वन डिस्कशन ज्यादा करा, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन इट्स टोटलिटी. इस पूरे एक्सपेरिमेंट्स में, इस पूरे टाइम में, नाउ दैट वी हैव अराइव्ड एट डेमोक्रेसी, वी सेड इन डेमोक्रेसी वी रूल, एवरीवन's voice counts. So that is on the basis of that we formed this constitution for India. Now that we had so many states coming together, because India was integrated by Britishers, even Mughals couldn't do that. मुगल नहीं पहुंच पाए साउथ इंडिया. सो इंडिया को यूनाइट करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, वो जाता है ब्रिटिशर्स को. दे यूनाइटेड इंडिया. नाउ व्हेन दिस इंडिया वाज यूनाइटेड and we saw so much of diversity, we thought that it is imperative that we have a constitution, because we had a center, we had states. So we made center, we made states. Now we had to divide power. So we divided power. हमने कैसे डिवाइड किया पावर? हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर 7th शेड्यूल लाया. 7th शेड्यूल कहता है, मेक योर ओन नोट्स, मैं आगे फैक्ट्स बताता भी जाऊंगा, बट go on making your own notes. So हमने 7th शेड्यूल के अंडर 3 लिस्ट्स बनाए. हमने कहा एक होगा सेंट्रल लिस्ट, एक होगा स्टेट लिस्ट, और एक होगा कंकरेंट लिस्ट. एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंड राइटिंग. घर पे मुझे बहुत डांट पड़ती है इसकी, आप लोग बेयर करना. सो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. यह क्यों बनाना पड़ा? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ना हो. ताकि कल को यह ना कहे, क्योंकि 2 सेंटर और स्टेट है, कल को यह ना कहे नहीं है मैं करूंगा, ये तेरा काम था, ये तू कर, तूने क्यों नहीं किया, ये मेरा काम था. ठीक है. सो वो इंटरेस्ट का क्लैश ना आए, इसीलिए हमने पहले ही डिवाइड कर दिया. ठीक. इस केस में हमने 3 लिस्ट बनाए, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. हमने कहा सेंट्रल लिस्ट पे जो चीजें होंगी, सो इट्स अ लिस्ट, बेसिकली लिस्ट घर पे जो आपको देते हैं दुकानदार निशानी, इट्स द सेम थिंग, लिस्ट हैविंग थिंग्स. सो सेंट्रल लिस्ट में जो चीजें हैं हमने कहा सेंटर उस पर कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जो चीजें हमने कहा स्टेट उस पर कानून बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट में जो है उस पर कहा दोनों कानून बनाएंगे. हो गया सिंपल. नाउ यही चल रहा था अभी तक, सब पिक्चर हंकी डोरी थी. इसके साथ साथ हुआ ये कि ये पूरे इंडिया में चला, मगर जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पास होता है, व्हेन दिस एक्ट इज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडिया उस टाइम पे इज नॉट इंडिया एज यू सी इट नाउ. इट वॉज प्रिंसिपैलिटीज, प्रिंसली स्टेट्स, डोमिनियंस. ठीक है. So all these were clubbed together, and Indian Independence Act said that India divide होगा, bifurcate होगा, एक आपका इंडिया बनेगा, दूसरा पाकिस्तान बनेगा. प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया आप जी चूज करो. हम उस टाइम पे JNK जो था वो प्रिंसली स्टेट था, रूल्ड बाय द महाराजा हरि सिंह. महाराजा हरि सिंह बैठे होते हैं, कुछ टाइम होता है, वो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करता इंडियन यूनियन,
कुछ टाइम होता है, अटैक होता है, कबाइलों का अटैक होता है, पाकिस्तान आर्मी उसको सपोर्ट कर रही होती है, वही पाकिस्तान आर्मी जो कुछ टाइम पहले तक इंडियन आर्मी थी। तो ये सब हो रहा है, समझ आ रहा है? तो हो रहा है सब कुछ। उसी के बैकड्रॉप में महाराजा जो है वो उठता है, वो ट्रीटी एक साइन करता है जिसको हम कहते हैं द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है बिटवीन महाराजा हरि सिंह एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 26th October 1947. On 26th October 1947 20 को अटैक हुआ होता है, 20th October को अटैक हुआ होता है और 26 को ये उठता है और साइन करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंडर द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सरेंडर्स 3 things to the Indian Union. Under this instrument of accession, the Maharaja of J&K surrenders 3 things to the Indian Union: defense, external affairs, communications. Defense, external affairs, communications. Defense, external affairs, communications. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसके अंडर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशंस, ये 3 चीज़ें हम सरेंडर करते हैं टू द इंडियन यूनियन। रिसेंटली मैंने इंटरव्यू किया था एक हमारे सिटिंग एमपी का, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, क्योंकि वो जुडिशरी के साथ रहे हैं बहुत टाइम। तो मैंने उनको पूछा, डू यू थिंक महाराज इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइना ने जो लैंड खाया, मैंने पूछा था, मैंने कहा डू यू थिंक महाराजा हरि सिंह वुड बी अ सैड मैन टुडे? ही डिडंट आंसर दैट। डिफेंस ऑफ J&K was primarily the responsibility of government of India, because that was one of the first things that we had signed. तो ये 3 चीजें हमने साइन की। नहीं, वेलकम टू हम सब। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया, हमने एक्सीड किया टू इंडिया किस बेसिस पे? उन्होंने पूछा क्या दे रहे हो, हमने कहा ये दे रहे हैं। तो ये 3 चीजें हमने दे दी। ठीक, एक चीज इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे व्हेन वी एक्सीडेड टू इंडिया, when the state of Jammu and Kashmir, I have to use the proper language, when the erstwhile state of J&K, now we are no longer a state, no, when the erstwhile state of J&K acceded to the Union of India, at that point of time, the Indian government made a commitment that Jammu and Kashmir would be given a constituent assembly that would be constituted, and that constituent assembly would be the one which would formulate a constitution for the state of Jammu and Kashmir. ठीक, और भारत सरकार ने वो कमिटमेंट पूरी की। हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, लोगों ने वोट डाला उसमें। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेक ए फ्लो चार्ट और समथिंग, Constituent Assembly formulated, वो Constituent Assembly बनी on the basis of adult franchise. ठीक है, they can ask you questions from any, so I'm trying to be as broad as I can. So ये Constituent Assembly बनी on the basis of adult franchise, लोगों ने इसमें वोट डाला। ठीक है, जो ये आर्टिकल 370 था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट इट इज अ टेम्पररी आर्टिकल. It's important to mention it here that it says that it is a it was a temporary article. And became operative on 17th November 1952. It was a temporary provision
and became operative on 17th November 1952. अब इसके अंदर हम क्या कर सकते थे? Real quick. So now we understand that India has two governments, central government and state government. State governments have jurisdiction up to the boundaries of the state. The central government has jurisdiction not only to the boundaries of the state, but to its jurisdiction even extends to Indian citizens living abroad, Indian industries abroad and whatnot abroad. Okay? So one, it has jurisdiction, the union government, it has jurisdiction all over India. ठीक? So state government का कानून state की boundaries तक चलता है, जबकि central government का कानून पूरे इस तक. ठीक? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाया, उसने हमें कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसने 5 साल लिए और 5 साल में उन्होंने 5 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K एनैक्ट किया, बनाया. जब आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, जो अब रहा नहीं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत कुछ आपको लगेगा रेप्लिका ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. I don't know what you'll call it, but I'll call it lazy brains. I call it lazy brains. Constitution of J&K to larger extent was a replica of the Indian Constitution. Much like Indian Constitution that was also borrowed from different constitutions of the world. But then again it was suited in different manners and the setup and everything was suited, curtailed, tailored to the Indian taste. ठीक? So this happens and we have a constitution now. Now what is the arrangement? Because to understand to understand the reorganization, you need to understand this reorganization act which took place, you need to understand what was the prior thing that was going on. So according to the Constitution of Jammu and Kashmir and the arrangement that we had with the Union of India, the Union of India could empower, based on the 7th schedule जो हमने अभी देखा, it could make laws on any subject. Law बना सकता था. Law क्या होता है? कानून. बिल्कुल. लॉ को समझने के लिए यहां आ जाओ. समझो नॉर्म क्या होता है. नॉर्म होता है एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय ए सोसाइटी. क्योंकि डिफरेंट डेमोग्राफीज है, डिफरेंट एस्पिरेशंस है, मोर और लेस हम सेम सोचते हैं, तो वट एवर वी कंसिडर नॉर्मल वी कॉल इट अ नॉर्म. मी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर, me walking down the streets of Kupwara or whatever in Jammu and Kashmir, if I see an elder or if I see anyone for that matter, Assalamu alaikum. It's a norm. It's a norm that I pay respect, I send peace to people. So it's a norm what is generally accepted by a society. When this norm is codified, it becomes a law. So a codified norm is a law. सलाम करना मुझे नॉर्म है यहां, अगर मैं सलाम ना करूं तो मुझे जेल में नहीं डालेंगे, बट अगर वो कोडिफाइड नॉर्म होगा तो मुझे जेल में डालेंगे. ठीक? सो अ कोडिफाइड नॉर्म बिकम्स अ लॉ. हु कोडिफाइज इट? इट इज द लेजिस्लेचर. गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और ये काम हमने दिया है, हम उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर. सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि ड्यूअल पॉलिटी है, दो गवर्नमेंट्स है. सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर. सेंट्रल लेजिस्लेचर वी कॉल इट द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर वी कॉल इट स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है? यहां से जब चलना हो कभी, अगर वहीं से घर जाते हो या कभी यहां से जाना हुआ, तो देख लेना आपका स्टेट लेजिस्लेचर कहां पे है. बी वेरी विजिलेंट, देख लेना, उससे समझ भी जल्दी आएगी चीजें. वहीं हाई कोर्ट के साइड में है. ठीक है? सो वो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है जो हमारे लिए लेजिस्लेट करता है, जो हमारे लिए कानून बनाता है, जो हमारे लिए कोडिफाई करता है नॉर्म्स को. ठीक? सो फॉर होल ऑफ इंडिया व्हाट हैपेंस इज दैट पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ. वी हैव दिस स्ट्रिंजेंट कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वी कॉल द 7th शेड्यूल, जो मैंने अभी बोला. समझ आ रहा है कि मैं बोलते जा रहा हूं बस.
7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने अभी बोला, जिसके अंडर सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो सेंट्रल लिस्ट के अंडर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंडर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट वाला बनाता है, सेंटर वाला सेंटर बनाता है, कंकरेंट वाले में दोनों बनाते हैं। कश्मीर के केस में 370 की वजह से सेंटर एम्पावर्ड था कानून बनाने के लिए। बात समझना, कश्मीर के केस में सेंटर एम्पावर्ड था कानून बनाने के लिए सेंटर लिस्ट में सिर्फ उन चीजों पे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखी हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हुआ, बट मोरल इज द सेम। समझ है? बात समझना, फॉर होल ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कुड मेक लॉज ऑन जो भी सेंट्रल लिस्ट में चीजें लिखी हैं। कश्मीर के केस में, JNK के केस में, पार्लियामेंट कुड मेक लॉज ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स विच वेर अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। समझ है? सो दिस गिव्स मोर पावर टू हु? स्टेट। अर्स्टवाइल साथ बोलो, अर्स्टवाइल लगना चाहिए ना, थोड़ा फील नहीं आ रहा है तुम लोग से। ठीक, बाबा मैं थोड़ी सी इज्जत दे रहा हूं इनको, आप भी थोड़ा दे दो। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बा बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं, जिसको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो, बेच खाते हो जो अफलाक के मदफन तुम हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करते हो, क्या न बेचोगे अगर मिल जाएं सनम पत्थर के। शोर है कि होंगे यहां से मुस्लिम नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। सो कमिंग बैक,
व्हाट हैपेंस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंडर जो चीजें थी वही चीजें सिर्फ सेंटर उस पर कानून बना सकता है, बाकी के केसों में यह नहीं है। बाकी स्टेट्स के केस में जो भी सेंट्रल लिस्ट के अंडर चीजें हैं उस पर सेंटर कानून बनाएगा, हमारे केस में वो नहीं है। साथ साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में अगर चीजें कोई ऐड करनी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 चीजें हमने दी थी, बट इसमें अगर चीजें ऐड करनी है, इसमें ऐड करने की चीजें ऐड करने का मतलब क्या होता है? सेंटर को मोर पावर देना, स्टेट का पावर कर्टेल करना, ऑटोनॉमी कम करना अपनी। वो अगर करना है, 370 ने कहा वो कर सकता है। कौन कर सकता है? वो कर सकता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं कर सकता। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कर सकता है, बट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कैसे निकलेगा? इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। बात समझना, इस चीज में अगर और चीजें ऐड करनी है, वो चीजें ऐड हो सकती है, मगर पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर प्रेसिडेंट खुद से नहीं निकालेगा, वो कंसल्ट करेगा स्टेट को पहले। ठीक, यू से क्लियर? ये करियो मेंशन, ये लिखियो, ये किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में थिंग्स कुड बी एडेड ओनली बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विद द कंसल्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना, क्योंकि हम जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे हम देखेंगे इसी को कैसे ट्वीक किया बीजेपी के चाणक्य ने। So what is the statement that if we need any change